لیکن اس میں اتحاد اتفاق ہونا بہت ضروری ہے۔ پچھلے دنوں کا مشاہدہ آپ کیجئے، ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں کیا ہوا سب واقعی کر سکتے۔ تو ہم جب کوئی پروگرام لے کے چلے اور یہ برائی کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے، نہ ہی کوئی اس میں ہمارا مفاد ہے، اس لیے ہمیں سیاسی رقابت، سیاسی دشمنی، یہ سب بازو میں رکھ کر کے ہمیں اس پلیٹ فارم کو مدد کرنا چاہیے۔ نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہوتا ہے تو فلاں کا نام، فرقے کا نام، اس کا نام، اس کا نام، معاف کرتا میں کھلے الفاظ میں بولنا یہاں پہ نہیں چاہ رہا، لیکن دل جب دکھتا ہے نا تو بولنا پڑتا ہے۔ ہمارے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے کا کام کرتے ہیں، نہ تو ڈپارٹمنٹ کی کیا مجال ہے کہ کوئی یہ کام کرنے سے بعض لوگوں کو نہ کرے، ایسا میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بولنا چاہوں گا۔ اور یہ جو اسٹیج ہے، یہ جو آج سجا ہے، یہ قابل احترام لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ اگر دل پر لے لیں گے تو میں سمجھتا ہوں طاقت کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ مالیگاؤں نشہ مکت ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں پہل کرنا ہوگی۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے محلے میں دورانی مسجد پر مقبول دادا نام کے ہمارے دادا بولا کرتے تھے، باہر محلے کا جب ایک کوئی لڑکا یا کوئی دکھتا تھا عشاء کی نماز کے بعد تو فوراً اسے ٹوکا کرتے تھے، کہاں گیا تو کہاں گیا، چل نکال یہاں سے۔ لیکن آج یہ سب ماحول نہیں رہ گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ کوئی نشہ کر کے آ رہا ہے یا کوئی نشہ آواز چیز سیل ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو طاقت سے اس کی نشان نہیں کرنا چاہیے اور روکنا چاہیے، یہ ہمارا بھی فرض ہے۔ اور میری تجویز یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اگر اس پروگرام کو لے کر چلنا ہے تو اس پلیٹ فارم سے جو بھی طے شدہ پروگرام ہوں گے، تجاویز تو بہت سارے آ چکے ہیں، اب نئی تجاویز دینے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا، تو جو کے اصلاحی پروگرام کے صدر شہر کے علماء کرام اور شہر کے ذمہ داران، پچھلے مہینہ میں مولانا عمران صاحب سے ملا اور مجھے پوری امید تھی کہ میں 12 نومبر کے معاملے میں جیل میں تھا، جیل میں مالیگاؤں شہر کے بہت سے دوسرے کرائم کرے ہوئے لوگ بھی تھے، مگر وہاں جو بات میں نے شدت سے محسوس کی کہ مالیگاؤں شہر میں کرائم کی بنیادی وجہ کہیں نہ کہیں نشہ اور اشیاء ہے۔ 90% لوگ جو جیل میں تھے وہ کرائم کیے تو اس کے آس پاس یا اس کے پیچھے نشہ ہی بنیادی وجہ تھی، اور اس لیے میں مولانا عمران صاحب سے ملا تھا کہ شہر کی ایسی بااثر شخصیت جو ہمیشہ اس معاملے میں کام کاج کرتے رہتے ہیں، وہ جب آئیں گے تو کام کاج میں کچھ نہ کچھ سدھار ضرور ہوگا۔ اور آج کی اس میٹنگ میں یہ کوئی عوامی میٹنگ نہیں ہے، یہ شہر کے ذمہ داروں کی میٹنگ ہے، اور یہاں جو چہرے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی بااثر شخصیت کا نتیجہ ہے جو آج مجھے مطمئن کرتا ہے کہ یہ پروگرام جو شروع ہوگا تو یہ آگے جائے گا۔ نشے کے بارے میں، نشہ 3 مرحلے میں نقصان دیتا ہے سماج کو۔ سب سے پہلے تو جو نشہ کرتا ہے اس کو خود نہیں سمجھتا، وہ دھیرے دھیرے پوری طرح دماغی طور پہ اور جسمانی طور پہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر کا نقصان کرتا ہے، گھر والوں کو تکلیف دیتا ہے، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جو سماج کو نقصان دیتا ہے۔ آج ہم جب یہاں بیٹھے ہیں تو ہم اس سچویشن میں بیٹھے ہیں جب یہ چیز سماج کو نقصان دینے پر آ گئی ہے۔ آج پورا سماج اس سے پریشان ہے۔ اب صرف اصلاح سے کام نہیں چلے گا، اب سخت کارروائی بھی ضروری ہے۔ اصلاح بھی ہونا ضروری ہے اور سخت کارروائی بھی ضروری ہے۔ میں مولانا عمران صاحب کو ایک تجویز پیش کرتا ہوں کہ مالیگاؤں شہر میں جب نشہ اور اشیاء پکڑی جاتی ہے تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو بھی پکڑا جاتا ہے،
जगह पर फूड एंड ड्रग्स का कोई ऑफिसर मालेगांव में मौजूद नहीं होता। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, पकड़ते हैं, उसके बाद उस पर जो भी कार्रवाई होती है, और बाद में नासिक से या तो ऑफिसर को बुलाया जाता है या फिर यहाँ से जो नशा और असली चीज पकड़ी गई है उसे हम टेबलेट की शक्ल में, मालेगांव के जबान में कुत्ता गोली बोले या दूसरे लिक्विड में कोई भी चीज हो, मगर कानून अपने हिसाब से चलता है, कानून का अपना एक तरीका है। जब वो चीज पकड़ी जाती है और 2-4 दिन के बाद उसका पंचनामा होता है तो कोर्ट में वो चीज मैनिपुलेटेड हो जाती है, करने वाले की तरफ से बात जाती है कि ये बाद में की गई चीज है, ये वही थी क्या जो हमारे पास से पकड़ी गई है। ये सबसे बड़ी वजह बनती है जो लोग बेचते हैं, जो लोग नशा करते हैं, उनके बच जाने की। तो मैं मौलाना उमरैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो नासिक कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स के पास एक मालेगांव शहर का एक वक्त लेकर जाएं और मालेगांव शहर में फूड एंड ड्रग्स की एक ब्रांच खोलने की बात करें। और वो मुमकिन है, जिला में होती है, जिला की पोजीशन में जो शहर है, दूसरे कई शहर में मालूमात लिए जो जिला नहीं है मगर वहाँ फूड एंड ड्रग्स के ऑफिसर मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मौलाना उमरैन साहब एक वक्त की शक्ल में, क्योंकि कल उनसे मेरी फोन पर बात हुई तो एक बड़ी खुशी की बात थी कि उन्होंने ये बात कहा कि ये कोई एक मीटिंग में या एक जलसे में ये चीज खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, इसमें मुसलसल लगे रहना पड़ेगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा शहर की तमाम ही सियासी, समाजी, मसलकी तंजीमों के ओहदेदारान और जिम्मेदारान, अब से देखूं तो आंखों पर यकीन आता नहीं, वक्त तो उसके जिस्म का सब संग मरमर पी गया। मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब ने जो कदम उठाया है, मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये कदम ऐसे ही असर और रसूख रखने वाले लोग ही उठाया गया। कहा था कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले सके। मैं बहुत मुख्तसर वक्त में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर हम सब जानते हैं कि यहाँ पर नशा और अद्वियात खुलेआम और सरेआम चल रही है और नौजवानों की बड़ी तादाद नशा कर रही है। मैंने माजी में भी ये बात कही थी कि मालेगांव शहर के सब नौजवान नशा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ नौजवानों की तादाद है जो नशा करती है, लेकिन अक्सर नौजवानों ने मालेगांव शहर का नाम सरबुलंद किया। वक्तन फवक्तन नीट के एग्ज़ाम आते हैं और मालेगांव शहर के नौजवान आउट ऑफ कंट्री में जाकर के एजुकेशन हासिल करते हैं, तो कुछ नौजवान ऐसे हैं जो मालेगांव शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात से कोई इनकार नहीं है कि जब भी ज़मीन के ऊपर फितना आया तो अल्लाह ने यह काम उलमा ही से लिया और उलमा ही ने फितनों की सरकूबी की है। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब से मैंने ये बात सुनी थी कि तारीख और इतिहास गवाह है, ये बूढ़ा आसमान इस बात का शाहिद है कि जब भी ज़मीन के ऊपर कोई भी फितना आया तो अल्लाह ने ये काम उलमा के कंधे के ऊपर डाला और उलमा ही ने इसकी सरकूबी की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आज मैं ये चीज महसूस कर रहा हूँ, होटलों की कुर्सियों के ऊपर बैठ करके लोग ये बात करते हैं, जब शहर के अंदर कोई बुराई पनपती है, बढ़ती है और बढ़ोतरी हासिल करती है तो लोग ये बात करते हैं कि उलमाए किराम क्या कर रहे हैं। मैं साफ तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ कि ये काम सिर्फ उलमाए किराम का नहीं है, ये हमारी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। हम सबको मिल करके इसकी सरकूबी करनी चाहिए, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। आज अगर हम उलमाए किराम के कांधे के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप देंगे तो इससे मसले का हल नहीं है। हम सबको आगे बढ़ करके इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी काम हम अगर शुरू करते हैं तो उसके अंदर तसलसल होना चाहिए। इसकी सरकूबी के लिए मैं तजवीज़ ये भी पेश करना चाहता हूँ कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अगर कानून हाथ लंबा करना चाहे
पुलिस डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है और पुलिस डिपार्टमेंट के पीछे लग करके ये काम करवाना पड़ता है। जब पुलिस डिपार्टमेंट ये काम करता है, पुलिस को सब मालूम है कि नशा कहाँ पर हो रहा, कैसे हो रहा और कहाँ से ये सब सामान आ रहा है। मैं आज की इस तंजीम के जिम्मेदार मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब और उनके रफ़का से ये बात कहना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर पकड़ बनानी चाहिए ताकि पुलिस डिपार्टमेंट मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर आज की इस मजलिस से आली के सदर अली कद्र मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम दानिशवरान आइदीन शहर, हम सब यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी तकरीर बयान वाज सुनने और करने के लिए जमा नहीं हुए, बल्कि शहर अजीज़ मालेगांव की मौजूदा जो सूरत हाल है, जिन हालात से वो नबर्द आज़मा है, बिलखुसूस खुदकुशी, नशा की लत, इसी तरीके से और ऐसे मसाइल और मामला जो काबिल बयान ये रोक सकते हैं, क्योंकि खुदकुशी करने वाला जो है एक पबजी गेम खेलने वाला भी खुदकुशी जाग कर रहा है और ख्वाहिशात इतनी हमारी बढ़ जाती है कि मुतालबात अगर घर से पूरे नहीं होते तो ऐसा करते हैं। कोई नशा करने के बाद माँ बाप को सताता है, कोई कैसे सताता है। ये उलमाए किराम तो मसाजिद से करते हैं, मसाजिद में जुमा के दिन 2 रकात पढ़ के नौजवान तो बाहर चला जाता है, सुनता कौन है। मगर माँ बाप तो देख सकते हैं ना, माँ बाप और हर गली हर महल्ले में एक पंच होती है, वो भी देखते हैं, तो वो सब भी होना चाहिए। मुझसे पहले बोला गया कि इनायत भाई बता रहे थे कि यार लोग डरते हैं उससे, सच बात है, क्योंकि वहाँ देखते हैं कि यार जिस जगह मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।